And a very thank you to Sir Nadeem as well. जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया था अपनी तारीफ करवाने, अब हो गया, मैं जा रहा हूँ. क्या ख्याल है? इनफ? नहीं, बात करनी चाहिए. चलें. Before I continue, I would like to ask you one question, a very simple question. And the question is, आप सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं आज. It's Sunday, it's a holiday, right? तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है. ऐसे ही है ना? आज का जो मौजू है, जो टॉपिक है जिसकी वजह से हम यहाँ जमा हुए हैं, कोई बता सकता है क्या टॉपिक है? किस पे बात कर रहे हैं हम? पावर ऑफ इंग्लिश. ओके. क्या आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश में पावर है? किसको नहीं लगता है वो हाथ उठा के बताएं. आज सारी बात उसी से होगी. फिर एहसास दिलाना पड़ेगा ना उसको कि पावर है. Okay, now let's begin. I would like to continue with the same thing as Sir Nadeem said earlier, that whatever Sir Nadeem is doing right now, the number of branches of schools and the number of years that he has spent all together in this industry of English language and education, believe me or trust me, wherever he is right now, it's all because of English language. Right or wrong, sir? अगर इनकी ज़िंदगी में अंग्रेज़ी ज़बान नहीं होता, if there were no English language in his life, trust me, no native schools, no benchmark, no educate, no Anglophile, nothing at all. Zero. So this is a very simple example of power of English. Number one. Number two, do you think, all of you, बात समझ आ रही है जो बोल रहा हूँ? Everyone? Sure? Or should I speak Pashto language if you could understand that? No? Sure? Or if you understand Punjabi, I can talk in that as well. And if you understand Bihari language, Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah, Amma se bhi Bihari hain aur Abba se bhi Bihari hain. Understand that? हमारी अम्मा पटना की हैं और अब्बा छपरा बिहार के हैं. You understand that? So I'm pure and 100% Bihari. And thou Bihari, who is extremely proud Bihari. In Bahrain, everyone, even Arab, knows that this is Bihari. And I tell everyone, even you, whatever your caste is, wherever you go in the world, never hide that. Be proud of it. Understand that? Wherever you are, wherever you go, tell the people that this is me. गलत करके नहीं, अच्छा करके. गलत करके बताओगे तो बदनामी होगी. उस वक्त छुपा लेना, उस वक्त छुपा लेना. लेकिन जब अच्छा करो, नाम करो, तो बताओ दुनिया को who you are, where are you from. Understand that? If somebody ever asks you, okay, if somebody ever asks me a question, and that question I'm asking you right now, I need just one word answer, or maybe a 2 words, or maybe a 3 word. The question is very simple, and everybody knows the answer. Shall I ask the question? What is the name of your town? 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 Yes? Oh my God. Problem. There is a big problem. Ask me the same question. What is your town? Sorry? What was the question I asked you? What is the name of your town, right? Repeat this question and ask me. What is the name of your town? Sorry? What is the name of your town? Sorry? What is the name of your town? Well, the name of my town is United States of Orangutan. What is the name? Be proud of whatever you are. Be proud of whatever you are. Trust me or believe me. जो वो कमल का पौधा होता है ना, कमल का फूल कहाँ पे उगता है? कीचड़ में. हीरा कहाँ से निकलता है? कोयले के कान से. चमक कब आती है? जब रगड़ा टाइट लगता है. बर्तन धोते हैं ना घर में, चमकाने के लिए क्या करना पड़ता है? रगड़ा टाइट. जैसे सर ने कहा ना, अक्सर लोग हमारे यहाँ करते कुछ नहीं है, करते. और हमारे एक बहुत
एक शायर हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ और बहुत पढ़ता हूँ। उनका नाम है उनका नाम है जॉन एलिया। क्या नाम है? लेकिन मैं उनको प्यार से कभी कभी मुंह से निकल जाता है हजरत जॉन ओलिया, बिकॉज जिस तरह की बातें उन्होंने की अपने दौर में, हमारे यहाँ खुसूसन हमारे माशरे के अंदर, जब तक इंसान जिंदा होता है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई कदर नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। जैसे ही वह मर जाए उसके नाम के तीजे भी होते हैं, चिल्ले भी होते हैं, 40वां भी होता है, 10वां 20वां, पता नहीं कब तक करते रहते हैं, लेकिन जब तक जिंदा है ना कभी खराज तहसीन नहीं पेश करते। मरने के बाद सारी चीजें याद आती हैं, जिंदा में कर दो तो हो सकता है और दिन जिंदा रह जाए, ऐसे ही है ना। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो वो कहते हैं जो लोग कुछ नहीं करते तो वो कमाल करते हैं, जो लोग कुछ नहीं करते तो वो लोग, तो ऐसे लोगों के बारे में मैं अक्सर कहता हूं। सर नदीम ने भी ये जुमला कह के चले गए, सर ने कहा जिंदगी भंड है फिर भी, तो हम कहते हैं जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी घमंड कब होना चाहिए? कब होना चाहिए? जब जिंदगी में बहुत कुछ बन जाए, when you become someone or when you reach to a power. Is that okay? Sir Muzammil is your teacher of English language, yes or no? अगर वो मेरी किसी बात से इत्तेफाक नहीं करते तो उनको किस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा कि वो मेरी बात से डिसएग्री करें? बताएं किस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा? कम से कम मेरे लेवल पे आना पड़ेगा, यस और नो? अगर आप अपने किसी टीचर की किसी बात से इत्तेफाक ना करें, आपको डिसएग्री करना है किसी बात से, तो आपको पहले उनके लेवल पे पहुंचना पड़ेगा और फिर डिसएग्री करेंगे। इज दैट ओके? विलियम शेक्सपियर ने जो बातें की, अगर मुझे उसकी कोई बात पसंद नहीं है तो मैं उफ उफ भी नहीं कर सकता जब तक मैं उसके लेवल पे ना पहुंच जाऊं। दैट्स द रूल, दैट्स द रूल, अंडरस्टैंड दैट? सो दिस इज व्हाट द लाइफ इज ऑल अबाउट। वेयरएवर यू गो, हमसे कोई भी आज तक पूछता है ना कि आपके टाउन का नाम क्या है, हम कहते हैं यूएसओ। औरंगी टाउन नहीं निकलता भाई, बिकॉज दिस इज माई पैरिस, दिस इज my America. So wherever I am, wherever I go in the world, I never tell कि मैं नॉर्थ कराची नागन चौरंगी में रहता हूँ, नहीं। मोहम्मद अली गबूल कॉलोनी, औरंगी टाउन, कराची, that's my birthplace, that's my Paris, and that's where I was born. Why I do this? Because I feel proud of wherever you are. और ये जुमला इस तरह से इतने फख्र के साथ बताने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा जिंदगी में। कुछ नहीं बनोगे और बताओगे तो फिर बदनामी होगी, ऐसे है ना। सो जहां से भी आपका ताल्लुक है, कभी उसको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इज दैट ओके? जिंदगी पूरी दुनिया में चले जाओ। सी आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड देयर वाज ओनली वन रीजन, दैट वाज इंग्लिश लैंग्वेज। ओनली बिकॉज ऑफ इंग्लिश आई वेंट everywhere in the world, wherever I am. Today I'm here talking to all of you. It's all because of, if there were no English in my life, I would never talk to you. Never at all. I would never come to you. Why would I? I'm here because of this one power, which is English. Wherever you go in the world, you need English. For example, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप तमाम लोग अंग्रेजी जानने के बाद डॉक्टर बन सकते हैं? Yes or no? No. Very good. डॉक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है? मेडिकल पढ़ना। मेडिकल कौन सी जबान में पढ़ाया जाता है? तो आप बताएं, अंग्रेजी सीखने के बाद क्या हम डॉक्टर बन सकते हैं? यस और नो? अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है आप तब डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन अगर अंग्रेजी आती है तो जरूर बन सकते हैं। मसला क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज हमारे यहाँ एक कुछ लीगल मैटर्स हैं। कौन से मैटर्स हैं? लीगल। वरना हमारे माशरे में, हमारे इलाकों में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की शक्ल भी नहीं देखी है कभी। अग्री और डिसअग्री? लेकिन वो डॉक्टर्स हैं। ऐसे डॉक्टर्स को क्या कहते हैं? अताई डॉक्टर। और बहुत सारे बहुत काबिल डॉक्टर से अच्छी दवाइयां भी दे देते हैं वो लोग, और इलाज भी हो जाता है, लोगों को शिफा भी मिल जाता है। अगर उनको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना नहीं आता तो वो इस लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकते। मसला खाली लीगल और इलीगल का है। दैट्स द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड दैट? अगर मैं आज यहां पर अंग्रेजी की अफादियत पे बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ इंग्लिश, रीजन आई एम द सर्टिफाइड मैन हु कैन टॉक अबाउट इट। What is my certification? A master's in English. That is the basic requirement to pursue your career, to pursue your profession in this field. One reason. I have done so many things in my life only because of English language. One question. क्या आप तमाम लोग अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर अंग्रेजी जाने?
To use your mobile phone, you need English? Yes or no? To operate computer, do you need English? Yes or no? If you go to a Pizza Hut or KFC or McDonald's, what language do you use? मेन्यू कौन सी जबान में होता है? तो अंग्रेजी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। एक सवाल पूछता हूं, इसकी ताकत बता रहा हूं मैं आपको, इसकी इतनी बड़ी ताकत बता रहा हूं कि आप हैरान हो जाएंगे। मोटरसाइकिल मैकेनिक कभी देखा है? यस और नो? देखा ही होगा हर किसी ने। एक मोटरसाइकिल मैकेनिक अपनी दुकान नहीं चला सकता अगर उसको अंग्रेजी ना आए। अजीब बात हो गई ना? यस और नो? अजीब है कि सही बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं तो सही बोल रहा हूं, कैसा है? नो, दिस इज नॉट द रियलिटी। कैसे ये बात कैसे कर गया? इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया मैंने कि एक मोटरसाइकिल मैकेनिक भी अपनी दुकान मैकेनिक शॉप नहीं चला सकता जब तक उसको कौन सी जबान ना आ जाए? इंग्लिश ना आ जाए। मिसाल के तौर पे बॉयज बाइक चलाते हो, ऐसे है। अब मैं कुछ चीज़ों के नाम पूछ रहा हूँ, कुछ चीज़ों के उसके नाम बताइएगा मुझे आप। वैसे अगर आप लोगों को भी पता हो तो आप भी बता दीजिएगा। जी, सीधे हाथ पे होता है, ऐसे घुमाते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, और ऐसे जो दबाते हैं उसको, और उल्टे हाथ पे जो दबाते हैं क्या? गुड हो गया। जिसमें ऐसे कांटा घूम रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? और जो नीचे पैर से ऐसे दबाते हैं और इधर से जो आगे पीछे दबता है और जो घूमता है वो क्या होता है? जिस चीज के अंदर सारे मैकेनिज्म लगा हुआ नीचे वो क्या होता है? इंजन। इंजन से और टायर से कौन सी चीज लगी हुई होती है? चेन। ऐसे ही है। जो पेट्रोल की टंकी होती है उसमें क्या डालते हैं? पेट्रोल डालते हैं ना, ऐसे ही है। और जिसपे बाइक को खड़ी करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टैंड कहते हैं। पक्की बात है। चलें, अब आप जितनी बात पूछी आपसे अंग्रेजी में पूछा था कि उर्दू में? कौन सी जबान में बात कर रहा था? तो सारे जवाब इंग्लिश में क्यों दे रहे थे भाई? हाँ, सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही हैं। क्यों? टैंक को टंकी नहीं बोलते हैं, टायर को पहिया नहीं बोलते हैं, हाँ, ब्रेक को रोका नहीं बोलते हैं। चलो अंग्रेजी में बताओ, उर्दू में। सड़क पे गाड़ी चलाते हुए जब जंप आता है, क्या आता है? हमेशा जंप ही क्यों आता है भाई? पाकिस्तान में तो जंप नहीं आना चाहिए। हमारी मादरी जबान क्या है? उर्दू है ना। नेशनल लैंग्वेज क्या है? उर्दू है। तो पाकिस्तान में जंप क्यों आ रहा है? जंप तो अमेरिका में आना चाहिए। जंप कौन सी जबान का लफ्ज है? तो पाकिस्तान में जंप क्यों आ रहा है? जंप नहीं आएगा तो क्या आएगा बताओ ना? पहले और खूबसूरत बनाया, मैं कहता हूं उछलू। क्या आता है? अगर तर्जुमा करोगे तो क्या होगा? और मोटरसाइकिल को उर्दू बताना। चलो उर्दू बताओ मोटरसाइकिल का जल्दी से। हाँ, मशीन। मशीन की स्पेलिंग होती है मीम अलिफ है, गलत बता रहा हूं? मशीन की स्पेलिंग होती है MACHINE। दैट्स मशीन। इट्स इंग्लिश लैंग्वेज। मोटरसाइकिल को उर्दू में क्या बताते हैं? जल्दी बताइए। अरे बोल बो। हाँ, बाइक। बाइक भी तो इंग्लिश का लफ्ज है। फटफटी बोलते हैं। क्या बोला उन्होंने? यस। क्या बोला जाता है? फटफटी बोला जाता है। बोला फटफटी? हाँ। पोस्ट ऑफिस का नाम सुना है? उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? डाक खाना। और जो ये डाक इधर उधर पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं? और एक लाल कलर का डब्बा कभी कभी पोस्ट ऑफिस के बाहर और जगह जगह लगा होता है, उसको क्या कहते हैं? हैं? ये लेटर बॉक्स और पोस्ट बॉक्स कैसे आ गया? उर्दू बात करते करते अंग्रेजी में कैसे चले गए तुम लोग? अभी तो डाकिया भी चल रहा था, डाकखाना भी चल रहा था, अभी किधर से ये पोस्ट बॉक्स आ गया, ये लेटर बॉक्स आ गया? बॉक्स भी इंग्लिश का लफ्ज है उर्दू का है? या बिहारी जबान का लफ्ज है? इंग्लिश का है। और पोस्ट बॉक्स उर्दू में बताइए भैया, उर्दू में बात कर रहे हैं हम आपसे। क्या? खत का डब्बा। उसको कहते हैं, खत को उर्दू जबान में और हिंदी जबान में डाक और पत्थर भी कहते हैं। सुना है पत्थर? पोस्ट बॉक्स को कहा जाता है पत्थर घुसेड़। क्या बोला जाता है? अच्छा ये क्या है भाई? चलो जल्दी से बताओ। हाँ, उर्दू में पूछ रहा हूं, इंग्लिश में? तख्ती तो नहीं है ये तख्ता है। चलो पहले ये बताओ, इससे आगे बात नहीं होगी। पहले बताओ, पानी बहता है कि बहती है? हाँ, बहे। बहता है कि बहती है? बहता है। गुड हो गया। सच सब बताएं। पानी बहता है कि बहता है? बहती है, सॉरी। बहता है या बहती है? अरे आसान कर लो, लड़की बहाए तो बहती है, लड़का बहाए तो, और दोनों मिल के बहाए तो बहे है।
ऐसे लेट्स मेक लाइफ इजी। साइज छोटा हो तो तख्ती और बड़ा हो तो ये तख्ता तो नहीं है, तख्ता तो ये भी हो सकता है, तख्ता तो बहुत सारी जगह, इसको ये तख्ता तो नहीं है, ये तख्ते के अलावा भी कुछ है। बताओ क्या है, कौन सा तख्ता है? सफेद तख्ता है। व्हाइट बोर्ड को क्या बोलेंगे? आज तक बोला सफेद तख्ता साफ कर रहा हूं, सफेद तख्ते पे पढ़ाना है? यस और नो? पंखा चल रहा है कि फैन? सच सच बताना। फैन चल रहा है ना? क्या है? वॉच है, घड़ी है, शर्ट है, कमीज है? चलो बटन, बटन है ना, ये बटन। अब सही है। अंग्रेजी में बताओ कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं अंग्रेजी में? चलें आप बताएं। बटन, फिर से बोलें, बटन। ये अंग्रेजी में जब भी एक चीज सिखा देता हूं, अंग्रेजी में जब आखिर में किसी लफ्ज के एन आ जाए, क्या आ जाए? एन, उससे पहले एक शॉर्ट वॉवेल नहीं वाउल आ जाए। क्या आ जाए? मैं अपनी बात कर गया जो कहना था, वॉवेल बोल के मैं वापस ले आया हूं आपको। वॉवेल इसलिए बोला ताकि समझ जाओ बोल के आ रहा हूं, हालांकि मैं वॉवेल नहीं बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं? वाउल। आखिर में क्या होगा? एन। एन से पहले क्या होगा? वाउल। कौन सा वाउल? शॉर्ट वाला। वाउल दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। मिसाल दूं? देखो, एक लफ्ज है CUT, क्या बना? CUT, कट। सी और टी के दरमियान में क्या है? वाउल है। कौन सा वाउल है? नाम क्या है इसका? यू। ये अ शॉर्ट साउंड दिया इसने, इस वाउल ने कौन सा साउंड दिया? शॉर्ट। तो क्या बना? कट। अ, कट। सी और टी के दरमियान जो साउंड है वो कौन सा साउंड है? अ। इसको कहते हैं शॉर्ट वाउल। जो शॉर्ट साउंड दे अलिफ का उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट वाउल। और जो लॉन्ग वाउल होता है वो लंबा साउंड देता है। मिसाल के तौर पे डार्क, बार्क, फास्ट, डांस। समझ आ गई बात? तो ए ज्यादा लंबा साउंड दे रहा है ना, आ, दैट्स लॉन्ग वाउल। तो जब अंग्रेजी में किसी लफ्ज के किसी लेटर, आखिरी लेटर क्या होगा? एन। एन से पहले क्या होगा? शॉर्ट वाउल। और शॉर्ट वाउल से पहले हो टी, टी हो, तो जो वाउल है उसको दबा देना है, टी और एन को मिला देना है। तो बटन की क्या स्पेलिंग है? BUTTON। तो टी भी आ गया, शॉर्ट वाउल भी आ गया, आखिर में एक और क्या चीज आ गई? एन। तो क्या बना दोनों? अगर ओ को हटा दे तो बटन। क्या होगा? बटन। और ये जो शर्ट है कौन सी है? कौन से कपड़े की है? कॉटन। क्या है? कॉटन। कॉटन। तो ये कॉटन नहीं है, क्या बनेगा? कॉटन। इज दैट ओके? चलो भाई ये बताओ, बटन को इंग्लिश उर्दू में क्या बोलते हैं? चलो जल्दी बताओ। बटन इंग्लिश का लफ्ज है, उर्दू का है? यानी कि साबित हो गया बगैर अंग्रेजी की जिंदगी मुश्किल है ना? मुश्किल है ना? ये क्या लगाया हुआ है? ऐनक या चश्मा नहीं लगाया मैंने, ग्लासेस। मास्क है ना ये, हम जो क्या पहनते हैं? मास्क। कम ऑन, मास्क इंग्लिश का लफ्ज है, उर्दू का। Hence proved that कि शायद 90 वाले को भी अंग्रेजी की जरूरत होती होगी, है ना? ऐसे ही भाई। तो विदाउट इंग्लिश सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। सर्वाइवल। अब और पावर बताता हूं अंग्रेजी जबान की। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी पोजीशन की इंटरव्यू और जॉब के लिए चले जाओ, इंटरव्यू कौन से जबान में होता है? PhD करके जाओ, उर्दू में इंटरव्यू दो, लोग समझेंगे चीटिंग करके PhD किया है। मैट्रिक जबान, मैट्रिक करके जाओ और क्लासिकल अंग्रेजी बोलो, लोग अरे वाह क्या तालीम याफ्ता आदमी है, बड़ा तालीम याफ्ता आदमी है। हमारे यहाँ किसी की काबिलियत, हमारे मुल्क के अंदर लोगों की काबिलियत उसकी जबान से तय की जाती है। किससे? जबान से। कितनी जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलोगे उतनी ज्यादा काबिल आपको ये कौम समझेगी। ऐसा है कि नहीं है? और एक बात याद रखना, अंग्रेजी बोलते हुए अगर च्युइंगम खाने का मजा ना आए तो आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। कौन सा मजा? जब च्युइंगम खाते तो मुंह कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है। अगर अंग्रेजी बोलते हुए आप मुंह टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते तो समझ लीजिए कि आप अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलते हैं। समझ आ गई बात? तो लोगों का काम है मजाक उड़ाना, उड़ाते रहेंगे। दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, विदाउट द वे इट इज स्पोकन, इफ यू डोंट डू दैट, nothing will happen. Wherever you go, even if you go to colleges and universities, everything is in English. All the subjects are in English. ऐसा ही है। आप यहाँ सड़क पे बाहर निकल जाएं, यहाँ से आप
बोर्ड ऑफिस तक चले जाएं और इर्द गिर्द दुकानें देखें आप, ऑलमोस्ट 90% दुकानों के सारे नाम इंग्लिश जबान में लिखे हुए होते हैं। ऐसे ही है ना? और हमारा तो ये हाल है, अंग्रेजी इतनी ज्यादा घुस गई है हमारी जिंदगियों में, इतनी ज्यादा घुस गई है कि हम तो मैसेजेस जब उर्दू में लिखते हैं तो उसमें भी लेटर्स ABCD होता है। जैसे मैं कैसे लिखते हैं हम? MAIN, मैं। और जा रहा हूं की क्या स्पेलिंग है बताएं? JARAHA, जा रहा। कम ऑन, दिस इज इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज। तो ये कमाल हासिल है अंग्रेजी जबान को कि उर्दू भी आप किस में लिख रहे हैं? इंग्लिश में लिख रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। नो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, दैट्स द पावर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं जिस यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ बहरीन, जिसका सर ने भी जिक्र किया, और मेरा है ताल्लुक, यहां पे मैं किन को पढ़ाता हूं? अरब्स को पढ़ाता हूं, और दुनिया के कई मुल्कों के स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं मुझसे। सिर्फ एक मिसाल दूंगा अरब्स की। ये अरब जो मेरी क्लास में से आप बैठे हुए हैं ना, आप कम बैठे हुए हैं, आपसे 4 गुना एक क्लास में बैठे होते हैं मेरे, और मैं यहां बैठ के खड़े होकर ऐसे पढ़ा रहा होता हूं। अगर मैं किसी अरब को कहता हूं ये स्टैंड अप, गेट आउट, अगर उसने उफ कर दिया, वो यूनिवर्सिटी में उसका आखिरी दिन है। अगर उसने क्या कर दिया? उफ। वहां सर नहीं बोला जाता, असातिज़ा को सर नहीं बोलते, वो लोग कहते हैं डॉक्टर। क्या कहते हैं? डॉक्टर। एवरी टीचर इज अ डॉक्टर देयर। नोबडी कॉल्स मी सर और टीचर, डॉक्टर। उसने ये भी नहीं कहना डॉक्टर, नहीं। इफ आई हैव आस्क्ड हिम स्टैंड अप एंड गो, ही हैज टू डू दैट। कौन बोल रहा है? एहसन आलम। कहां से ताल्लुक है? और यूएसओ से। कहां से ताल्लुक है? यूएसए को कौन सा इलाका? मोहम्मद अली गबोल कॉलोनी। मोहम्मद अली गबोल कॉलोनी। अगर वो अरब स्टूडेंट आके देख लेना कि उसका टीचर कहां से है, वो तो शायद मुंह ना लगाए मुझे। ऐसे ही है ना? ये वो अरब्स हैं जो बड़ी बड़ी फरारी गाड़ियों में आते हैं मेरी क्लास अटेंड करने के लिए। एक उंगली के इशारे पे वो घूमते हैं मेरे, एक उंगली के इशारे पे, एक उंगली के इशारे पे। ये इज्जत कैसे मिली? बिहारी जबान से, उर्दू जबान से, किससे? इंग्लिश से। ये वही अरब है, जब आप जाइएगा ना उसके पास, हम पाकिस्तानी आम तौर पे और कुल्ली तौर पे, इफ यू गो टू अरब, कहानियां सुनते ही होंगे आप। ये पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी कुल्लू क्या कहते हैं पता है ना तुम लोगों को? नहीं पता है? पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते हम पाकिस्तानी हैं, इनके आगे ऐसे हाथ जोड़ते हैं हम जाके, इनकी मर्जी से हम उठते हैं, इनकी मर्जी से हम बैठते हैं, हम इनके आगे हाथ जोड़ते हैं। ये अरब मेरी क्लास में मेरा हाथ जोड़ते हैं, सर 1 नंबर, सर आधा नंबर, सर पास कर दीजिए। सो हाउ आई गॉट ऑल दीज रिस्पेक्ट्स इन माई लाइफ? ओनली बिकॉज ऑफ, कुछ भी करो जिंदगी में, अंग्रेजी में महारत हासिल कर लेना। Whatever do in your life, either you become a doctor or engineer or an accountant or a teacher, whatever you become, even if you become a mother and if you become father, you must know English. You must know. अभी मैंने कुछ 10-12 किताबें आजकल पढ़ रहा हूं, तो एक दोस्त से जिक्र किया कि ये किताबें आप भी पढ़ो, तो उसने कहा सर अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू ज़बान में अगर ये किताबें मिल जाएं तो मुझे बताइएगा। और आप यकीन करें, ये अंग्रेजी मेरा रिस्क है ना, इस रिस्क को हाथ में लेके कहता हूं, मैंने पूरा उर्दू बाजार छान माना, मुझे एक किताब उर्दू में नहीं मिली सर। नॉट इवन अ सिंगल बुक आई कुड फाइंड इन इंग्लिश, सॉरी इन उर्दू लैंग्वेज, वो किताब। तो इसका मतलब है वो शख्स जिसको अंग्रेजी नहीं आती, वो ये इल्म हासिल कर सकता है जो मैं अंग्रेजी पढ़कर हासिल कर रहा हूं। ऐसे ही है ना? दैट्स द डिफरेंस। वो सारे किताबें जो अंग्रेजी जबान में हैं, और बहुत कीमती किताबें भी हैं, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, नहीं समझ में आती, वो हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जिसको आती है वो कर सकता है। आप सब तरक्की करना चाहते हैं ना जिंदगी में? हर कोई चाहता है ना, कोई ऐसा जो तरक्की नहीं करना चाहता? Everyone wants to grow in their lives. So the only way right now is अंग्रेजी जबान। और सिर्फ अंग्रेजी सीखना और बोलना नहीं है, अंग्रेजी की जो इज्जत है वो पूरी करनी है आपने। अंग्रेजी कई तरह की है, याद रखें। एक अंग्रेजी है व्हाट इज योर नेम। क्या है? व्हाट इज योर नेम? आई एम हियर फॉर अ वर्कशॉप। हाँ, व्हाट आर यू डूइंग? अंग्रेजी तो है ना? नहीं है। आई एम टॉकिंग टू यू, ये अंग्रेजी है कि नहीं है? एक इंग्लिश ये भी है।
तो एक इंग्लिश कौन सी है? I'm here. हाँ, what's your name? I'm here. I'm talking to you. There's a power of English. It's not power or power. It's power. It's power of English language. एक किस्सा मुख्तसर सुनाता हूँ. अंग्रेजी कितना घुस गया हमारी जिंदगी में. मैं और मेरे दोस्त, ये नहीं थे, कोई और से दोस्त थे, हम दोनों गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया. पंक्चर वाले के पास गए तो पंक्चर लगा रहा था, तो अचानक मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि ये बताएं इस टायर को उर्दू में क्या बोलते हैं. मैं परेशान हो गया. जैसे आप मोटरसाइकिल में फटफटी में फंस गए ना, जंप और उछलू में फंस गए ना, मैं भी फंस गया. तो कह रहा तू कैसा अंग्रेजी का टीचर है, तेरे को उर्दू में इसका नहीं पता. मैंने बोला अंग्रेजी में पता, इतना काफी है. अंग्रेजी का टीचर हो तो क्या आना शर्त है, उर्दू की अंग्रेजी. इफ अंग्रेजी ना आए तो मसला है, लेकिन अगर उर्दू ना आए तो मसला. I don't teach Urdu language. I don't teach उर्दू नहीं बोला भाई, क्या बोला है? Urdu language. देखो डी का साउंड क्या होता है? ड के द. तो अगर उर्दू हुआ तो ये दोर होगा ना, डोर तो नहीं होगा. फिर दक बोलेंगे हम, डक नहीं बोल सकते. इसीलिए मसला सारा क्या है कि हम अंग्रेजी जबान को उर्दू में बोलने की कोशिश करते हैं. अंग्रेजी जबान को जब उर्दू में बोलोगे तो यही होगा. फिर दुबई रहेगा. फिर अंग्रेजी में भी दुबई हो जाता है और उर्दू में भी दुबई है. ऐसा नहीं है भाई. अंग्रेजी में डी का साउंड ड होता है, द नहीं होता. तो इसीलिए डोर होता है, इसीलिए डांस होता है, इसीलिए दुबई होता है, इसीलिए लंदन होता है. ऐसे ही है ना. और इसीलिए इट्स नॉट डोर, इट इज डोर. इसीलिए अंग्रेजी में जब मैं उर्दू बोलूंगा तो क्या बनेगा? उर्दू. व्हाट्स योर मदर टंग? उर्दू लैंग्वेज. आपकी मादरी जबान कौन सी है? उर्दू. तो उर्दू में उर्दू है, लेकिन इंग्लिश में उर्दू नहीं है. जान लीजिए, हर जबान की खूबसूरती है. जैसी जबान हो वैसे ही बोलना है. तो पंक्चर लगाते हुए अचानक मेरे दोस्त ने क्या बोला कि टायर को इंग्लिश में उर्दू में नहीं समझ में आया. तो अचानक एक खान साहब टैक्सी अपनी, उनका भी टायर पंक्चर हुआ तो लेकर आए. उन्होंने हमें बहस करते हुए देखा तो अचानक से कहा तुम लोग बड़े पढ़े लिखे लग रहे हो, लेकिन बड़े जाहिल हो. मैं कहा खान साहब खैरियत तो है. क्या तुम लोगों को टायर का उर्दू नहीं पता क्या है? मैंने खान साहब नहीं याद आ रहा, अभी क्या करें? कह रहा रुको मैं बताता हूँ. मैंने खान साहब बताओ. क्या बोला होगा खान साहब ने, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है. मैंने बोला, खान साहब ने पूछा तुम सवाल पूछो फिर से. बोला सवाल. बोला टायर को उर्दू में क्या बोलते हैं? खान साहब कहता है टेर. क्या बोलता है? टेर. मैंने बोला खान साहब जबरदस्त हो गया. वो ताली नहीं है वाली, समझ गए कौन सी ताली है? हाँ, वो वाली ताली बजनी चाहिए थी खान साहब के लिए. इसलिए हमारे लोग अक्सर टेम देखते हैं. क्या देखते हैं? टेम. और कभी बर्गर में केचप भी डाल देते हैं. वो क्या डालते हैं? हाँ. और जब कोक ना मिले, कोका कोला, तो पेप्सी भी पी लेते हैं वो. सो मसला क्या है कि जैसा बोलोगे वैसी ही इज्जत होगी. जैसा सीखोगे, सिर्फ सीखना नहीं है, मतलब सही वाला सीखना है. सिर्फ सीखना, सही वाला सीखना है. अंग्रेजी को उर्दू में नहीं सीखना है, अंग्रेजी को अंग्रेजी में सीखना है, इंग्लिश में नहीं. अभी उर्दू बोल रहा हो तो उर्दू में उर्दू के अल्फाज होने चाहिए. और जब अंग्रेजी आप बोलें तो उसमें उर्दू नहीं घुसेड़ना है. प्लम्बर को उर्दू में रहने दो. प्लम्बर को, जब ये प्लम्बर अंग्रेजी में आएगा तो बोलेगा आई एम अ जब प्लम्बर इंग्लैंड जाएगा तो बोलेगा आई एम अ प्लम्बर. क्या बोलेगा? आई एम अ प्लम्बर. क्या बोलेगा? प्लम्बर. यस. बी साइलेंट है. उर्दू में प्लम्बर है, इंग्लिश में क्या है? प्लम्बर. इज दैट ओके? लॉजिक समझ में आ गई? उर्दू में उर्दू है, लेकिन इंग्लिश में उर्दू. और दुबई उर्दू में है कि अंग्रेजी में? और इंग्लिश में क्या होगा? दुबई. इज दैट ओके? You understand what I'm talking? Do you understand? Do you understand? Are you understanding? ये भी इंग्लिश है. अगर मेरे सामने किसी ने बोला ना आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो मुझे पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन सी अंग्रेजी है इसकी. समझ आई मेरी बात? सो द प्रॉब्लम इज
जो काम करो उसको बेस्ट करना है। क्या करना है? जिन लोगों की अपने अपने पेशे में और अपने प्रोफेशन में इज्जत होती है, इसीलिए होती है कि वो अपने पेशे के माहिर होते हैं। अपने पेशे के क्या होते हैं? वो माहिर होते हैं। उनकी इज्जत ना हो तो फिर कहना, ऐसा ही है ना। सो द पावर ऑफ इंग्लिश इज वेरी सिंपल। Wherever you go in the world, whatever you do, if you know English, you can survive. If you know English, you can survive anywhere in the world. You can get good jobs. Yes or no? Yes. You can get highly paid husbands in your future. You can get highly paid wives. Come on, man. Work hard. Don't get highly paid wives. Be highly paid yourself. Is that okay? So the simple life philosophy. Learn English. Improve yourself. And speak English in a way that everybody would love to listen. कभी रेडियो एफएम सुना है? रेडियो एफएम सुनने का इत्तेफाक हुआ आप लोगों को? आजकल चूंकि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा लोग हो गए हैं तो रेडियो सुनने का इतना कम हो गया है। वरना अक्सर रेडियो पे कुछ ऐसे आरजे बैठकर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आप उनको सुनते हो, यार क्या ज़बरदस्त गुफ्तगू है, क्या अंदाज़ बयां है। वहाँ उसने कपड़े भी पहने नहीं पहने आपको नहीं पता है, लेकिन आप उसकी आवाज़ सुनते हो, ओ वाओ, कोई काला चोर बैठा हुआ उधर, यू डोंट केयर, कहता क्या गुफ्तगू है भाई, क्या ज़बरदस्त बात करता है। जैसे अगर कभी कोई गुस्से में जोंग के हेल्पलाइन पे फ़ोन करता है ना, गुस्से में, तो वहाँ से इतनी प्यारी से आवाज़ आती है, हेलो सर, हाउ मे हेल्प यू। यार ओ चल रहा है खल्ली वल्ली यार, छोड़ यार गुस्सा गुस्सा। Understand that? तो ये the way you talk, the way you deal with the world, that becomes your prophecy. Is that okay? तो भाई चेंज करना है, और ये this is the best time. आप सारे youngsters यहाँ बैठे हुए हैं, I can see that. एज जैसे जैसे ज्यादा होती जाएगी ना, तो आपका जो ये साउंड मशीन है, साउंड मशीन में जंग लग जाएगा। उसके बाद जिंदगी में प्लम्बर ही निकलेगा मुंह से, याद रखना, प्लम्बर नहीं निकलेगा, उर्दू लैंग्वेज नहीं निकलेगा। सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स, योर इंटरनेट इंग्लिश, योर सोशल मीडिया, योर कंप्यूटर, मोबाइल फोन, शॉपिंग, ट्रैवलिंग, इंग्लिश, वेयरएवर यू गो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। खाली एक डिग्री ऐसी है हमारे मुल्क में जो उर्दू जबान में होती है, वो होती है एम ए उर्दू। क्या एम ए उर्दू? कौन सी जबान में? उर्दू में। बाकी सारी एम ए जो है ना सब इंग्लिश में होती हैं। इवन इफ यू इकोनॉमिक्स। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उर्दू में पूछूंगा नहीं समझ में आएगा, हालांकि नेशनल लैंग्वेज है आप। उर्दू में पूछूंगा, अक्सर लोग बता ही नहीं पाएंगे मैं बोल क्या रहा हूँ। पूछूं? जिससे पूछूंगा वही बताएगा। किससे पूछूं? आप बताएं। यस, ग्रे स्कार्फ में आप बैठी रहें। लचक की तलब क्या चीज होता है? उर्दू ज़बान में पूछा है ना, लचक की तलब। नहीं बता? अच्छा, आप बताएं। जुज़वी क्या चीज होता है? जुज़वी खल्ली वल्ली। यस, जुज़वी पार्ट। गुड हो गया, परफेक्ट लफ्ज हो मुझे। चलो, जुज़वी माशियात। जुज़वी माशियात कौन बताएगा? बाहर वाले नॉट अलाउड। जुज़वी माशियात बताएं बताएं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब समझ में आ गया? और कुल्ली माशियात, हाँ ये तो तुक्का मारा है ना, एक माइक्रो हुआ तो दूसरा क्या होगा? माइक्रो मैक्रो समझ में आ रहा है। अपनी जबान में जुज़वी और कुल्ली नहीं, कुल्ली हो रहा है बस। Come on, please don't do that. अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना। हमने कहा अंग्रेजी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पूछे, हर तकदीर से पहले लोग पूछें, हाँ भाई कितनी अंग्रेजी आती है। तब्दीली कर दिया हमने। दिस इज नॉट लाइफ। कम ऑन प्लीज, अपनी जबान को भी, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अपनी जिंदगी की पूरी बात कर रहा हूं। आपको पता है उर्दू जबान से मोहब्बत कब होगी? बताओ, जिस दिन आप अंग्रेजी जबान के माहिर हो जाएं, उस दिन उर्दू जबान से मोहब्बत ना हो जाए तो मेरा नाम एहसन आलम की जगह जो लगाना है लगा देना। जब कौन सी जबान से मोहब्बत हो जाए या माहिर हो जाए आप,
कौन सी जबान में? इंग्लिश में। तो ना आपको उर्दू जबान से मोहब्बत हो जाए तो फिर कहना। पूरी जिंदगी जितना खाया मैंने, जितना बनाया मैंने, रोजी मेरा ब्रेड एंड बटर है ना। अंग्रेजी क्या है मेरा? इट्स माई ब्रेड एंड बटर, इट्स एवरीथिंग फॉर मी। लेकिन आज भी कहता हूं कि अगर उर्दू जबान को आप समझेंगे थोड़ा सा, टॉपिक चूंकि पावर ऑफ इंग्लिश है, लेकिन फिर भी अगर उर्दू की बात ना की जाए तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई गुस्ताखी नहीं होगी अपनी जबान के साथ। देखो एक मिसाल देता हूं, आप सबसे, आपके वालिद के जो भाई होते हैं, आपके वालिद फादर के जो ब्रदर हैं, वो आपके इंग्लिश में क्या हुए? इंग्लिश में क्या हुए? अंकल। अंकल हुए ना? अंकल हुए कि नहीं हुए? ये पैटर्नल और मैटरनल की बात बाद में करेंगे। किसकी बात? पैटर्नल और इसकी बात बाद में करेंगे। पहले क्या हुए? और ताया क्या हुए? अंकल। पुप्पा क्या हुए? खालू क्या हुए? चच्चा क्या हुए? मामू क्या हुए? ये उर्दू जबान है भाई। अंग्रेजी में सिर्फ अंकल है, हमारे पास 5 लफ्ज हैं। मामू भी है, पुप्पा भी है, खालू भी है, ताया भी है, चाचा भी है। यस और नो? अंग्रेजी में कितने लफ्ज हैं? उर्दू में कितने? रिश्तों को किसने निभाया? उर्दू ने कि अंग्रेजी ने? तो समझ ही नहीं आता अंग्रेजी बोलते हुए कि मैं अपने दूल्हा भाई से बात कर रहा हूं कि साले से बात कर रहा हूं। ये भी ब्रदर इन लॉ है और ये भी समझ ही नहीं आता साली से बात कर रहा हूं कि भाभी से बात कर रहा हूं। ये भी और ये भी। कम ऑन, द मोस्ट कंफ्यूजिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द मोस्ट एंड द फनीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एज वेल। एंड द 3 लेटर बोल रहा हूं, वर्ड बताइएगा। BUS क्या बना? BUS क्या बना? BUSY बोलो। अरे बस ही नहीं हुआ। लॉजिक क्या कहती है? लॉजिक क्या कह रही है? BUS क्या बना और BUSY क्या बनना चाहिए? बसी। क्या होना चाहिए? बिजी कैसे हुआ? है कोई तुख? तुख है? तुख मलंगा भी नहीं है यहां पे। तो बस के आगे वाई लगाओ तो क्या बनना चाहिए? क्या बन रहा है? कैसे भाई? जिस जगह हम घरों में रहते हैं उसको हाउस कहते हैं ना। क्या कहते हैं? क्या स्पेलिंग है? HO। और इसका प्लूरल क्या बनेगा? हाउसेस। क्या बनेगा? और चूहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माउस। क्या कहते हैं? और माउस का जमा क्या होना चाहिए? माउसेस ना। लेकिन अंग्रेजी में माउसेस नहीं होता भाई। क्या होता है? माइस। हाउसेस का जमा हाउसेस, तो माउस का जमा क्या होना चाहिए? माउसेस। लेकिन गोरा बोलता नहीं। क्या बोलता है? माइस। डज इट मेक सेंस? बूट का जमा बूट्स, बूट का जमा, और फूट का जमा फीट, फूट्स होना चाहिए ना। तो BUS क्या बना और BUSY? बसी होना चाहिए ना भाई। बस ही करो। साहब लोग कहीं ना बोलते सर बस कर दें, बस खत्म करें, दैट्स ऑल। एक और सवाल पूछूं? पूछूं? अंग्रेजी आप उर्दू की बात हो रही है, अब मैं पावर ऑफ उर्दू जबान है, ताकत बता रहा हूं उर्दू की आपको। लेकिन ताकत पता नहीं कद्दू किधर चली गई, पम्पकिन हो गया सारा ताकत। सो द क्वेश्चन इज CUT क्या बना? CUT। सब मेरे साथ बोलेंगे। CUT, BUT, NUT, HUT। रिपीट कर रहा हूं। CUT, BUT, NUT, HUT, CUT, BUT, NUT, HUT, PUT। पट के पुट। सच सच बताओ किस किसने पट बोला है? बोला है ना पट। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक क्या कहता है? अगर CUT कट है तो PUT पुट क्यों है, पट क्यों नहीं है? ये देखो अंग्रेजी जबान है, इसके पीछे पागल हो तुम लोग हैं। ये पावर इसकी भाई है। कुछ भी कर ले, शाहरुख खान वाला है। यू कांट डू नथिंग। है तो है, सब कुछ है, सारी बुराइयां हैं, पावर है। समझ गया? बैटरी फुल चार्ज है इसका।
मेरा भी और अंग्रेजी का भी. So that's why you need to understand. क्या ख्याल है? तो खरबूजे को देखकर रंग पकड़ लेना चाहिए. अगर रंग नहीं पकड़ेंगे, that will become a problem for a lot of us. पावरफुल जबान है ना अंग्रेजी या नहीं है? चलो एक टास्क देता हूं आप लोगों को. बहुत सारी चीजों का तो आप बता ही नहीं सके. चलो एक और आसान काम देता हूं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है. So what I was talking about is, इसका आपने इंग्लिश बताना है मुझे. मक्का मौज़मा बताओ इंग्लिश. मक्का मौज़मा इंग्लिश में बताओ. हॉली मक्का. हॉली मक्का. मक्का. ओके, गुड. नहीं हो सकता तर्जुमा. मदीना मुनव्वरा बताइए अंग्रेजी. नहीं हो सकता. ये खूबसूरती मक्का मौज़मा मदीना मुनव्वरा, ये खुसूसियत सिर्फ उर्दू ज़बान को हासिल है. दुनिया की कोई ज़बान इस तरह से बोल ही नहीं सकती. मक्का मौज़मा और मदीना ये सिर्फ हम बोलते हैं. पूरी दुनिया के अंदर, पूरे कायनात में सिर्फ उर्दू बोलने वाले. अंग्रेज़ी ज़बान की वसअत ही नहीं है. अंग्रेज़ी ज़बान की वसअत समझते हैं आप? वसअत समझते हैं? कौन बताएगा वसअत क्या चीज़ होता है? उर्दू में बात कर रहा हूं मैं. वास्ट, वसी होना. वसअत क्या होता है? वसी होना. उसकी ताकत समझ लें आप. सही है? दिस इज व्हाट द लैंग्वेज इज ऑल अबाउट. हम चूंकि हमने अपने आप को बुलंद नहीं किया, तो जब आप नहीं करेंगे तो कोई काला चोर भी करेगा. ऐसे ही है ना? जब मेरे जैसे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे तो फिर तो कोई भी पढ़ाएगा. ऐसे ही है ना? सर मुजम्मिल जैसे लोग इस फील्ड में नहीं आएंगे तो एक फल बेचने वाला भी आएगा, वो आपको अंग्रेजी पढ़ा के निकल लेगा. चूंकि अंग्रेजी अच्छी आती है, भले से बाहर उसकी सब्जी की दुकान है, आप बोलेंगे वाह सर क्या अंग्रेजी पढ़ाई है. आप पढ़ेंगे उससे, यकीन माने पढ़ेंगे. मैं इस औरंगी टाउन के अंदर ऐसे लोगों को जानता हूं जो शाम में सब्जी और फल बेचते हैं और सुबह इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं. तालीम नील बटा सन्नाटा. So this is the power of English language. So English language is something that can take you anywhere in the world, or it will take you anywhere in the world. This is the most powerful language right now on earth, because your everything. इनको जाने दीजिए. आप दोनों को जाने? Please go. Thank you so much for coming. So this is the most powerful language in the world. Anywhere you go, if you don't know English, trust me, you will face problems. University, business, job, traveling, wherever. English चाहिए चाहिए. Without English, survival is not that much possible जितना होना चाहिए. You understand? Understand or not? और अंग्रेजी को अंग्रेजी में बोलना है. अंग्रेजी को और उर्दू को. Is that okay? So when you talk in English or when you speak English, it should reflect that you are speaking English. And we are talking in Urdu language, you must let the people know that you are speaking Urdu language. जुल्म नहीं करें किसी ज़बान के साथ. जो ज़बान जैसी है उसको वैसी बोलें. हमारे यहाँ बस आता है, उर्दू में बस आती है. हमारे यहाँ बारिश होता है, उर्दू में बारिश होती है. तो उर्दू को उर्दू में बोलें और अंग्रेजी को अंग्रेजी में बोलें. हमारे यहाँ पता नहीं क्या मिक्स पत्ती किया हुआ आपने. आई डोंट नो. बड़ा ही ज़हूर राजा रानी हुआ हुआ यहाँ पे. सो प्लीज मेक योर लाइफ इजी एंड एवरीवन्स लाइफ ईजियर. एंड आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. बात यह है कि जो मोटरसाइकिल की मिसाल दी थी ना आपको, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश. दैट्स द रीजन. इवन मोटरसाइकिल मैकेनिक को बेचारे को नहीं पता होगा उर्दू में क्या बोलते हैं. घूम जाएगा वो. तो फाइनली आपने बताया नहीं टायर को उर्दू में बोलते क्या हैं? पहिया के चक्का. आप घूमते रहो इसी में. पहिया है ना कि चक्का है? हाँ हाँ. अच्छा, व्हील को पहिया कहते हैं और टायर को छक्का बोला किसी ने. ये भी हो सकता है, याद रखना. जबान है ना भाई, स्लिप हो सकते हैं ना आगे पीछे. यस और नो? एवरीथिंग इज पॉसिबल. एंजॉय किया करें जिंदगी को.
अगर याद रखो मेरी एक बात याद रखना। ये शेर सुना रहा हूं अपना लिखा हुआ, ये आखिरी बात है आज की। मेरी एक बात याद रखना, हो सके तो कहीं लिख लेना। मेरी एक बात हो सके तो कहीं अल्फाज बहुत कुछ होते हैं, अल्फाज कभी दिलों को जीत लेते हैं, कभी दिलों को चीर देते हैं। तो अल्फाज बहुत सोच समझ के आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा ना। भैया सीख लीजिए अंग्रेजी ज़बान, बहुत फ़ायदा होगा। पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे ना, बहुत इज्जत होगा। इतना इज्जत घर में नहीं हुआ होगा जितना अंग्रेजी ज़बान करा देगा। इस तरह क्या है, तो कहीं जाओ, कहीं भी, पूरी दुनिया जा सकते हो, खुला आपके लिए, फ्री में तालीम हासिल करने जा सकते हो, चाहे यूएस हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो। एक ही शर्त है, अंग्रेजी आनी चाहिए। मैं बताऊंगा आपको कैसे जाते हैं। यहाँ औरंगी टाउन से मैंने खुद पर्सनली कई बच्चे तालीम हासिल करने के लिए दुनिया के कई ममालिक में भेजे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो। फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहा हूं, 1 रुपया नहीं लगा बच्चे का, सिवाय पासपोर्ट बनाने के। बस शनाख्ती कार्ड भी खुद बना लो, वरना हमारी कौम तो इतनी नाशुक्री है, कहती है पासपोर्ट भी तुम ही बनाओ। अल्लाह के वास्ते तू अब घर चला जा, नहीं आई हो मेरे पास। तो सिर्फ ओनली 1 लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। अगर कमांड हासिल कर लो और थोड़ा सा गूगल पर सर्चिंग आता हो, गूगल पर ढूंढना आता हो कि दुनिया भर में तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स कैसे मिलती हैं, कहां से मिलती है, यू कैन डेफिनेटली गेट इट। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.